خدا کا کرم رحم اور فضل آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج ایک بار پھر اس خاص واقعے کو خدا میں یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے اور پھر انہوں نے چاہتے وقت ایک بڑا خاص پیغام دیا اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی ایمان لائے ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا۔ اور یہ بڑی خاص بات اس نے کہا، دعویٰ کیا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور تم ان کو یہ تعلیم دینا۔ یہ بڑی خاص باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کے ساتھ سیکھوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب اس نے ان 12 شاگردوں کو اپنے پاس بلایا اور پھر ان سے کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے وہی اختیار کو آگے دے سکتا ہے، اور یہ بڑی خاص اور اہم بات ہے۔ لوگ جو آج کلیسیوں میں تصویر نظر آتی ہے، خاص طور پر بیماروں کے بارے میں اختیار استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ لوگ دعوے دار ہیں یہ لی ہونے بیمار ہے جی، یہ واسطے ہوں جی 8 دن دعا کریں گے، ہوں جی ان واسطے پورا مہینہ دعا کریں گے۔ اور وہ دعا کیا اختیار ہے یا وہ دعا التجا ہے؟ یہ دونوں لفظوں کو علیحدہ علیحدہ سے میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یسوع مسیح نے تو اختیار دیا ہے، آپ نے صرف کہنا ہے سو ہو جانا ہے، لیکن دعا جو ہے وہ اور ضمن میں چلی جاتی ہے اور اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے جب ہم سر جھکا لیتے ہیں، جب ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو پھر اس کا متن بدل جاتا ہے، لیکن اس کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ دعا ہی ہے۔ لیکن یہاں پر کتاب مقدس حصہ انجیل متی کی انجیل اس میں یہ لکھا گیا اور یہاں پر رقم ہوا، یسوع مسیح نے فرمایا دیکھو میرے پاس اختیار ہے، اور آسمان کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے۔ اور شاگردوں کو اس نے اختیار بخش دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پالوس رسول نے آگے جا کر دعا کرنے کی بڑی خاص تنبیہ کی، اس نے نصیحت کی کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، آپ اس طرح سے دعا کیا کرو، آپ بیماروں کے لیے دعا کرو، یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن جو روح القدس کا بپتسمہ پائے گا، جو وہ قوت کا لباس پہن لے گا، اس کے لیے یہ دعا کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں پھر اس کے پاس اختیار ہے اور وہ اس اختیار کے ساتھ ان بدروحوں کو دور کر سکتا ہے، ان بدروحوں کو اس بدن میں سے دور کر سکتا ہے، اور پھر ان بیماریوں پر اس کو اختیار ہے، وہ بیماروں سے کہہ سکتا ہے آپ شفا پا جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اور میں اس کی تصویر پورے طور سے کتاب مقدس میں اور حصہ انجیل میں دیکھتا ہوں، خدا یسوع مسیح کی لائف کو، ان کی پریکٹیکل لائف کو، تو وہاں پر مجھے نظر نہیں آیا، میں نے نہیں سیکھا، میں نے نہیں پڑھا کہ یسوع مسیح نے 3 دن کے لیے بیماروں کے لیے دعا کی۔ اس نے تو مردوں کو بھی کہہ کر زندہ کر دیا ہے۔ چوتھے دن کے لازر کی تصویر میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ اس نے قبر پر جا کر اسے کہا اے لازر باہر آ،
उसने ये नहीं कहा कि आए खुदावंद खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू लाजर को उठा खड़ा कर और फिर इसको बाहर आने के लिए कह दे। उसने खुदा से नहीं कहा, उसने उसके अंदर, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, वो खुदावंद है, वो खुदा जैसी कुदरत रखता है, तो फिर उसने अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आखिरी वक्तों में हम देखते हैं कि उसका वो दावा सादिक था, वो सच्चा था, इसलिए उसने फिर अपने उस दावे को फिर से अपने ईमान रखने वालों के लिए दोहरा दिया कि मेरे पास इख्तियार है, और आसमान का भी है, ज़मीन का भी है। उसने बहुत एक और जगह पर भी उसने कहा, मुझे इसको देने का भी इख्तियार है और मुझे लेने का भी इख्तियार है। ये दावे, बड़ा खूबसूरत दावा जो यीशु मसीह ने फरमा दिया, और फिर हमें इससे तक़वियत मिलती है। इससे मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़े ईमान की बात है। हम बेबस, कमज़ोर, हकीर, नाजिज़ नहीं हैं, बल्कि हम साहिब इख्तियार हैं। उसने तालीम भी दी तो उसने साहिब इख्तियार की दी। यहूदी कहने लगे कि ये साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता है, ये खुद कहता है कि इस तरह से करो, इस तरह से ईमान रखो। यहूदियों को यही तकलीफ थी, और यहूदी यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। वो कहते हैं कि हम उस यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं जो हमें निजात देगा, लेकिन हम इंतजार नहीं करते, बल्कि हम ईमान ले आए, हमने उसे कबूल कर लिया कि यही वो खुदा का बेटा है, यही वो यीशु मसीह है जिसने हमें निजात बख्श दी है, जिसने हमारे गुनाहों की माफ़ी का ऐलान कर दिया है। ये वही यीशु मसीह है जिसके खून के वसीले से हम खुदा बाप के लेपालिक बेटियां और बेटे बन गए हैं। आज मैं इस बात को आपके साथ सीखना चाहता हूँ। अगर रूहुल कुदस का बपतिस्मा मिलेगा और हम पा लेंगे, और मैंने पहले ये बयान किया कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम जाकर इसी शहर में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिल जाए। आज क्या किसी की तमन्ना है कि रूहुल कुदस का लिबास पहन ले? आज किसी को ये तमन्ना है कि वो रूहुल कुदस का बपतिस्मा पा ले? अगर आप ये तमन्ना रखते हैं तो ये बड़े ख़ास अय्याम हैं, क्योंकि आप जानते हैं उसके आसमान पर उठाए जाने के बाद फिर से 10 दिन के बाद एक और ईद आने वाली है यहूदियों की, और उस ईद पर भी मौजज़ा हुआ। और वो मौजज़ा क्या है कि रूहुल कुदस का नज़ुल हुआ, रूहुल कुदस उन पर नाज़िल हुआ, और वो 12 के 12 रूहुल कुदस की कुदरत से भर गए। बहुत सी क्या साराइयाँ भी मौजूद हैं। मैं अभी पिछले दिनों ये बात कर रहा था इसी बात पर, तो मेरे एक दोस्त ने, मेरे साथी ने मुझे कहा वो तो 120 की जमात थी। और जब मैंने उनसे कहा कि इसको ज़रा उर्दू की लगत के मुताबिक इसको समझने की कोशिश करो, इसको फ़िक्रा बंदी को समझने की कोशिश करो, इसके उर्दू के बंद को जो लिखा गया उसको समझने की कोशिश करो, किस तरह से इसको तलावत कर रहे हो, किस तरह से इसको सीख रहे हो, तो फिर वो शर्मिंदा हुआ, क्योंकि मैंने पतरस का बयान जो है उसको फिर से याद दिलाया। मैंने कहा नीचे देखो उसने क्या कहा, और वहाँ लिखा है कि वो उन 11 के साथ खड़ा हुआ, वो 120 की जमात के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये गलत फहमी है, और बहुत से लोग इस गलत फहमी को
समझने की कोशिश नहीं करते। मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब आप इसको समझने की कोशिश करें। ये 120 की जमात पर रूह कुद्दस नाज़िल नहीं हुआ, ये सिर्फ उन 12 शागिर्दों पर जिनको खुदा ने चुन लिया था, जिनको खुदावंद ने चुन लिया था, उन पर रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और उन्हीं को वो लेकर उस पहाड़ पर गया और फिर वो आसमानों की वसतों में मकीम हुआ और उसने उन 12 पर ही अपने रूह कुद्दस का नज़ुल फरमाया। ज़रा बड़ी बारीकी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ इसको सीखने की कोशिश कीजिए। खुदा और ये जो ख़ास बात कि वो जहन को खोल देता है ताकि सहीफ़ों की लोग तशरीह कर सकें, उनको समझ सकें। मैं फिर कल बयान करूंगा कि जिनको रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हो जाएगा, हो गया है और होगा, उनमें क्या निशानियां होंगी, क्योंकि दावेदार बहुत से लोग हैं, पादरी दावेदार नहीं है। ये जो पास्टर कहलाते हैं ये दावेदार नहीं है, ये तो दाल रोटी के चक्कर में है, ये तो पैसे कमाने के चक्करों में है। इन्होंने बिल्डिंगों पर कब्जा जमाया हुआ है, इन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं इसलिए कि उनके ज़राए आमदन हो। रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे के लिए वो इन दिनों में अपनी उन बिल्डिंग्स में दुआ के लिए नहीं ठहरे, वो दुआ करने के लिए नहीं, हमें तकवीयत मिल जाए, हमें ताकत मिल जाए, हमें वो अख्तियार मिल जाए, उसके लिए नहीं, बल्कि ये तो बिल्डिंगों के दरवाजे खोलते हैं ताकि हम चंदा इकट्ठा कर सकें, हम पैसे इकट्ठे कर सकें। मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि ये लोग उस ईमान की मंजिल को दुरुस्त नहीं रखते। चाहिए तो था कि इन दिनों में, इन 10 अय्याम में दिन रात उन बिल्डिंग्स में प्रस्तश और इबादत होती और रूहुल कुद्दस के बरकत के लिए लोग दुआ में ठहरते, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यीशु मसीह और उसके 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु मसीह ने उनके लिए मुकर्रर किया था। और आज क्या हम अपनी दुआ के लिए, अपनी उस कुव्वत को पाने के लिए, उस अख्तियार को पाने के लिए, क्या हम चर्च बिल्डिंग्स में जाकर ठहरते हैं, या फिर बस गए तो वापस आ गए, घंटा आधा घंटा बस। गीत गाने वाले नौजवान गीत गाते रहते हैं और जो बूढ़े होते हैं वो खामोश बैठे रहते हैं, पादरी भी खामोश बैठा रहता है, हालांकि उसको तो सबसे पहले गीत को शुरू करना चाहिए, ज़बूर को शुरू करना चाहिए, हमद व सना उसको शुरू करनी चाहिए। पादरी कहते हैं नहीं ऐसी कलाम जो सुनाना होता, फिर थक जाने, फिर सस्ते से गीत नहीं गा सकते। मुझे अफसोस है, दुख है ऐसे लोगों पर जो खुदा की हमद व सना भी दुरुस्त नहीं कर सकते, जो खुदा के कलाम को भी बयान नहीं कर सकते, वो लोग जो अपने बदन को कुर्बानी के लिए पेश नहीं करते, वो लोग इस बात का अलंबा उठाए हुए हैं हम मजहबी पेशवा हैं, हम मजहबी जो लंबरदारियां हैं वो हमारे पास हैं। किसी के पास कोई लंबरदारी नहीं है, किसी के पास कोई मजहब का कोई ठेकेदार नहीं है। मजहब किसका है? मसीह किसका है? उसका जो उस पर ईमान रखता है। आज इस हद तक कि हम खुदावंद यीशु मसीह के उस इख्तियार को हासिल करने के लिए दुआ में ठहर जाए और फिर उस इख्तियार को हासिल कर लें। खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे।